May we have your attention, please? We shall be shortly commencing the convocation ceremony.
May we have your attention, please? We shall be shortly commencing the convocation ceremony. At this time, we request everyone to please At this time, we request everyone to please rise and welcome the convocation procession as they enter the arena. आप सभी से विनम्र आग्रह है कि कृपया दीक्षांत शोभा यात्रा का खड़े होकर अभिवादन करें. At this time, we request everyone to please be seated. Jai Hind. A very good afternoon to all the dignitaries on the dais, off the dais, special invitees, graduating students, parents and members of the RRU family. I, Mohit Charan, along with my colleague Dr. Aparna Verma, welcome you all to the second convocation of Rashtriya Raksha University. Today's ceremony will witness the conferment of degrees for various bachelor's, master's, MPhil, diplomas for the batches of the academic year 2022 and PhD scholars.
We are specially delighted that alumni from other batches are also present to grace the occasion. It is our honor and privilege to have with us Shri Rajnath Singh, Honorable Defence Minister of India, as the chief guest. Huge round of applause. We are delighted to have with us Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, as the special guest of honor. Towards the extreme right, we have Professor Dr. Bimal N. Patel, Vice Chancellor, Rashtriya Raksha University. Towards the extreme left, we have Shri Ajay Rajgor, Registrar, Rashtriya Raksha University. May we request the Vice Chancellor to kindly felicitate our distinguished guests on behalf of the Rashtriya Raksha University. Honorable Defence Minister of India, Shri Rajnath Singh. Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel. Thank you, sir. Rashtriya Raksha University is a pioneering security and police university with a mission to emerge as a premier center of knowledge for global and national stakeholders. It endeavors to focus on highly professional security, strategic and police education, research and training through its academic and practitioner faculty. Rashtriya Raksha University seeks to contribute to India's vision of a peaceful, prosperous and stable world order based on the rule of law. Spread over 230 acres with its growing innovation, technology and research culture, RRU campus and infrastructure aim to offer the best opportunities to participants and students for their professional growth and advancement. Now, let us have a glimpse of our university through this small documentary. Safe, secure, and developed nation requires inculcation of the highest ideals of citizenship and citizen-centric services with intellectual acumen, more commitment and professional competence. To inculcate these eternal values and ethos into every citizen and to create well-trained personnel in the field of national security, the Honorable Prime Minister of India and the then Chief Minister of Gujarat, Shri Narendra Modi, envisioned a university.
Rashtriya Raksha University. Rashtriya Raksha Sarvopari. Established in 2010, Raksha Shakti University in Gujarat started working diligently to strengthen one of the Panch Shaktis called Raksha Shakti for the progress of the nation. The university was transformed from the state level into the national level in the year 2020 as the Rashtriya Raksha University under the Ministry of Home Affairs, the Government of India. Serving the nation as an institution of national importance, the university aims to become an academic research training ecosystem for national security and policing. It endeavors to impart international standards of training, research, education, extension in security and policing with the help of qualified, committed and motivated faculty. With the guidance and patronage of the Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah and the Ministry of Home Affairs, RRU is laying strong foundation and preparing pool of dedicated young women and men who are aspiring to serve for a long time Central Armed Police Forces, State Police Forces, Paramilitary Forces, Defence Forces and private and corporate security. Spread over 230 acres land in Lavad, Gandhinagar, generously donated by the Gujarat government, RRU has been receiving support from the successive leadership of Gujarat since 2010 and is being nurtured by the committed institutional leaders. The university has 10 schools which offers diploma, undergraduate, postgraduate and doctorate level programs. The Security and Scientific Technical Research Association, SASTRA, is India's first national security innovation center with an objective to facilitate a three-way engagement between academia, industry and the government for innovation, incubation and technology acceleration in the security space. Global and national experts, practitioners and faculty impart contemporary and futuristic training and education, working towards enhancing the police image for their competence, dedication and caring services as well as empowering women in security. University has state-of-the-art IT and cyber security lab, artificial intelligence lab and machine learning lab, forensic lab, brain mapping tools, human performance lab, just to name a few. As an impaneled organization of the External Affairs Ministry, Indian Technical and Economic Cooperation Program, RRU is reaching out to friendly and like-minded nations across the globe, emerging as a contributor to the global security knowledge resource base. School of the Internal Security and Police Administration works for smart police, who are strict but sensitive, modern and mobile, alert and accountable, reliable and responsive, techno-savvy and trained. Coastal and marine policing, tourism policing, community policing, and working for public safety and security of women, weaker sections and minorities. The university stands out as a fulcrum of future of India's security needs, interests and concerns. Women empowerment in security centers precisely to empower through tailor-made programs for women to join security forces, to prevent, reduce and control the menace and threat of narcotics, explosives among others. School of Internal Security and Police Administration. The school has dedicated dog squad with trainers and ready to groom boys and girls who want to join this emerging area of search and investigation of the national security. Continuous professional learning and enriching the knowledge base and skill set of emerging security needs. The online integrated platform, RISE, provides learning opportunities in any remote part of the country. With augmented base of 122 training programs and 6,500 beneficiaries till now. The university runs psychotherapy centers at villages like Lavad, Sampa and Dahegam as a part of extension and outreach initiative. RRU
offers modern classroom facilities, advanced laboratories and equipment, digital as well as physical library, normal and adventure sports facilities, and good quality of hostels. University NCC Battalion resonates the call to join armed and security forces. Strategic languages, knowledge of national and international affairs, insights into defense and military history of the nation and globe, complemented by strong and rigorous physical and mental fitness training, is an integral daily life of RRU boys and girls. During the university's first convocation, 1,092 young graduates were awarded various degrees. राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी अपना व्याप बहुत तेजी से बढ़ाने जा रही है। अब तेजी से सभी क्षेत्रों में जाकर अपना एक एक कैंपस कम से कम खुले क्षेत्रवार इसकी चिंता करेगी। To spread the wings and scale to the newer heights, RRU has opened its first off-campus center in Arunachal Pradesh, and the other one is coming up in Uttar Pradesh. In a short span of time, RRU has generated keen interest of doyens of the national security field. Skilling the aspirants, upskilling the in-service personnel, and reskilling ex-servicemen and women, RRU prepares right national security-related human resource for the nation. यूनिवर्सिटी देश का गहना है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए यहाँ जो चिंतन मनन शिक्षा ट्रेनिंग होगी वो राष्ट्र रक्षा के लिए आने वाले कालखंड में देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा करेंगे। Rashtriya Raksha University, the emerging global address for security education. Today, Rashtriya Raksha University takes pleasure in addressing such an august gathering on this historic occasion of its second convocation. The ambience itself is vibrating with the overwhelming enthusiasm of the university, graduating students, proud parents, and committed faculty and staff members. Respected Vice Chancellor, sir, I have the honor to request you to declare the second convocation of Rashtriya Raksha University open and request you to deliver the welcome address with the presentation of the annual report. Thank you, sir. Jai Hind. On behalf of the Rashtriya Raksha University, it is my honor and pleasure to express gratitude and welcome Sri Rajnath Singh, Honorable Raksha Mantri of India, Sri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Gujarat Chief Minister, members of the governing body, Executive Council, Academic Council, Finance Committee, faculty and staff members, serving and retired members of our valiant security forces and organizations, distinguished guests, ladies and gentlemen, alumni, students, and their parents on the occasion of the second convocation of the university, an institution of national importance, Ministry of Home Affairs, Government of India. RRU, successor of the Raksha Shakti University, envisaged as an ecosystem of one of the five strengths, Gyan Shakti, Jal Shakti, Urja Shakti, Jan Shakti, and Raksha Shakti, by the Honorable Prime Minister, has traversed an illustrious journey and now is taking significant steps as an institution of national importance to provide and maintain international standards of security and policing for the nation. All 10 schools of the RRU continue constituting the security educational ecosystem has been undertaking innovative and forward-looking training, research, education and extension programs, namely CISPA, CTEX, CISMAS, SCBS, SLGS, SFRMNS, CISL, CISDIS, Space and SASET. Shastra, Scientific and Technical Research Association, a Section 8 company, initiated several innovation, indigenization, and startup-related activities for our security organizations and forces
and started laying framework and provided innovation and startup opportunities to youth studying at these 10 schools. More of Sastra prowess and potential at Defence Expo 2020 from tomorrow. RRU offered academic programs from diploma to doctorate level in police science and environment, defense and strategic studies, criminal law and justice, criminal law and cyber psychology, forensic and risk management, information technology, artificial intelligence, cyber security, investigation, strategic languages, physical education and sports, coastal and maritime security. Nearly 1,000 students are enrolled under 26 programs from 18 states and union territories of India. Besides, nearly 2,200 National Security Guard personnel as well as 460 EME cadets from Indian Army and 2 Indian Navy officers are also enrolled for various programs. Besides, 15 Indian Army and 587 NSG personnel got their diploma certificates from RRU. Besides academic programs, nearly 10,000 individuals, including 909 from Central Armed Police Forces, 1,066 from State Police, 52 from Defence Forces, and 5,687 others benefited from our training programs. In addition, as an empaneled organization in the field of security education by the Indian Technical and Economic Cooperation, Ministry of External Affairs, RRU training programs benefited 400 officials from 41 countries in Africa, Asia, Latin America, and Europe. RRU is initiating programs and activities to contribute to the enhanced image of our police service and increase empowerment of women in security and police services. While mentioning about women empowerment, RRU has initiated public-private partnership training and certification program, and I am happy to welcome our first batch of young men and women from Dahod and Panchmahal, and now look forward to create dedicated women firefighting brigade with Vadodara-based IFS-DMS, whose inauguration in March 2012 was done by Honorable Prime Minister, then as the Chief Minister, to cater to the ever-growing needs and concerns of providing dedicated cadres of fire and safety personnel for our economy. I am also pleased that RRU has 35% women employees. We are safe and secure because of immense contribution and sacrifices and selfless services of our security and police personnel. To provide skills and much-needed education platform to private and corporate security industry, RRU has initiated collaboration with national and international private security companies. We are working towards collaborating with those industries so that the private and corporate security industry need of 2.1 million well-trained and educated private security guards and personnel are met. 900 personnel from corporate and private security industry have been trained, including certification in industrial safety and security. In line with the call of Honorable Home Minister during the CISF Raising Day, we will work with CISF and private security industry in this regard. Similarly, RRU is geared to provide ecosystem of training and education to our Agniveers, and also recently launched Raksha Shakti schools by the Gujarat government. To ensure RRU prepares and gives the nation women and men who serve the security cause with distinction, besides academics, RRU laboratories, human performance, brain mapping, layered voice analysis, artificial intelligence, cyber security, information integrated security data dashboard. Students get exposure and first-hand training in these laboratories, making them ready to serve our security from day one and fulfilling the vision of smart policing of the Honorable Prime Minister. RRU has initiated a series of training and counseling programs in collaboration with National Legal Service Authority, Gujarat State Legal Service Authority, and Home Department of Gujarat Government on mental health and well-being of our security, defense, and police personnel. RRU research and publication is firmly getting established, and our approach is innovation and research-based teaching university. Besides Chanakya, the National Security Journal of India, RRU International Research Journal on Police Science for various security projections based on data and evidence are appreciated by the stakeholders. RRU aims to provide a large pool of best trained and manpower for our defense and security forces, catering the upskilling needs of current personnel and providing reskilling platform for retiring servicemen and women.
Starting from the age of 16 years, whoever want to join security forces will find the state-of-art, tailor-made educational and training opportunities. In this regard, a unique Eklavya project initiated by IRU has been beneficiating nearly 1,000 youth from Uttar Pradesh and Uttarakhand and provided employment to nearly 650 youth already. RRU, in collaboration with all the three wings of Defense Forces, Army, Navy and Air Force, is growing from strength to strength, from language education to innovation and technology partnership. RRU initiated capacity building programs under which, among others, it aims to provide sustained training and exchange of knowledge to defense acquisition officials. As we are propelling our journey from defense goods and services importer to exporter, importance of this University of RRU will hugely benefit the nation. RRU has established its campus in Arunachal Pradesh and in Lucknow and plans to make for establishing 3 more campuses in India and abroad in line with the mandate of the RRU and drawing support from the Honorable Home Minister. We thank the Honorable Chief Ministers of Uttar Pradesh and Arunachal Pradesh and the government of these states for their support. We are fully geared up to make our best contribution to develop India in the field of national security and policing by offering specialized courses to youth for direct recruitment into police and security services in Agniveers, collaboration with institutions such as IITs, IIMs, NIMHANS, ISRO for specialized training, collaboration with foreign institutions and experts for capacity building, research and sharing best practices in niche areas, augmenting solidly our capacity building base to fulfill the vision of our Ministry of External Affairs and to become a global leader in training, research, education, extension in all areas related to security and police by 2047. Friends, each day of the Amrut Kal will be having RRU contribution to make India Atmanirbhar and Atma Surakshit. RRU is Gurukul for Suraksha of the nation, and the nation which aims for a peaceful, stable and rule-based international order. As an upcoming member of the United Nations International Law Commission, it will be my honor and pleasure to serve the cause of international peace and security through the means of international law and create further awareness in the world community of India's ideals of Vasudhaiva Kutumbakam. I take this opportunity to express my very deep gratitude to Sri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister and the entire Gujarat government for the generous grants and support. RRU Central Campus, located in the serene area of Lavard, will continue to make its apt contribution to the faith and support provided by the Gujarat government. Friends, institution building and sustaining to meet the vision of the nation is a lofty challenge. And on this day, I thank successive Director Generals of RSU, Sri O.P. Mathur, Sri A.K. Singh, Sri Vikas Sahai for their contribution. Universities are known for the faculty and staff. On behalf of everyone, I express my deep gratitude to provide Chancellor, the Dean of Academics, Registrar, University Directors, faculty and staff. Vibrant socially, culturally and physically conducive ecosystem can only sustain if the university service providers are as committed as a Vice Chancellor or a faculty or a staff. And indeed, my deep appreciation to our mass security and housekeeping services for their contribution to this great institution of national importance. Graduating students, with sincerity and hard work and honesty, you can achieve all lofty ideals. And I am sure my faculty and staff have imbibed in each of you these values. May Almighty God's choicest blessings be always with you and your near and dear ones. Mrs. Rupal Patel and our 2 sons, Prithvi Karban and Nand, join me in wishing you all the best. Jai Hind. I would now request the Vice Chancellor to kindly commence the proceedings of the conferment of degrees. This convocation of the Rashtriya Raksha University has been called to confer the degrees upon the candidates who,
in the examinations held for the purpose have been certified to be worthy of the same. I request all the graduating candidates to please rise at their respective places. I request all the candidates to say with me, do you sincerely promise and declare that if admitted to the degree for which you are candidates and for which you have been recommended, you will, in your daily life and conversation, conduct yourselves as worthy members of this university? Let the candidates be now presented. Sir, I have the honor to present to you the candidates for the degree of PhD, MPhil, Masters, PG diplomas, bachelors and diplomas whose names are set out in the list. They have been found qualified for the degree to which I pray they may be admitted. Congratulations to all the students, PhD scholars, the graduate and postgraduate batches of academic year 2022. We are very proud of you. Huge round of applause for the graduating students. May I request all the candidates to be kindly seated. We will now present the degree certificates to the Doctor of Philosophy awardees and announce the medals for students and certificates for trainees of RRU on their academic achievements. The presentation of degree certificates and award of gold medals by Honorable Defence Minister will now commence. The awardees for the Doctor of Philosophy are as follows. Akhani Kiran Kumar Praful Bhai. Huge round of applause. Reena Sharma. I will now announce the names of the candidates receiving the gold medal. Patel Meet Praveen Bhai. Rathod Bhargav Haresh. Shriyansh Srivastav. Swapnali S. More. Gabriela Michael. Momin Pal. Rebant Juyal. Haisav Somil Chokshi. Shashwat Bhardwaj. I will now announce the names of the best performers of the Fireman Training Program. Mandoj Subhash Bhai Ajmail Bhai. Parmar Kamlesh Kumar Samji Bhai.
Hatela Mahesh Bhai Makabhai. A huge round of applause for all the students. Congratulations. Thank you, Honorable Defence Minister, sir. हम सभी दीक्षांत समारोह के विशेष अतिथि मंचासीन श्रद्धेय श्री भूपेंद्र भाई पटेल माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति से अभिभूत हैं। महोदय, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने उद्बोधन से देश की युवा शक्ति को ऊर्जा और प्रेरणा करें। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में अपने साथ मंच पर विराजमान भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलपति श्री डॉक्टर बिमल भाई पटेल, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री अजय कुमार राजगौर, विश्वविद्यालय के संवैधानिक निकायों के प्रतिष्ठित सदस्य, सशस्त्र बलों के सब सदस्यगण, उपस्थित अध्यापक, अधिकारीगण, सभी विद्यार्थीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज यहां इस अवसर पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में उपस्थित रहने मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के एक ऐसे विजनरी लीडर हैं जो भविष्य में आने वाली चुनौतियों को समय से पहले ही निपट लेने का विचार और आयोजन कर लेते हैं। समय के साथ साथ रक्षा क्षेत्र की बढ़ती चुनौतियों के सामने स्किल्ड ह्यूमन वर्कफोर्स तैयार करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प का परिणाम यह रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है। वर्ष 2009 में राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री जी ने रक्षा यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी। आज हम जिस परिसर में उपस्थित हैं, उस परिसर को कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में राष्ट्र को समर्पित किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तथा गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह के निरंतर समर्थन से ही गुजरात की यह रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी अब राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हुई है। आज जैसा हम सब जानते हैं, साइबर युग में अपराधी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी से सज्ज होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे अपराधियों को नश्यत करने और उनके काम लेने में हमें साइबर एवं टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने कानूनी व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण पहलू कानून, रक्षा शक्ति और फॉरेंसिक साइंस लैब को जोड़कर इस क्षेत्र में अतुलनीय काम किया है। यह विश्वविद्यालय पुलिस साइंस में डिप्लोमा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ग्रेजुएट, साइबर सिक्योरिटी में बीटेक जैसे अनेकों कोर्सेज के देश में सिक्योरिटी इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। इस उभरते क्षेत्र में युवाओं को कैरियर डेवलपमेंट के नए अवसर भी दे रहे हैं। अपनी 1 दशक की शैक्षणिक एवं शोध यात्रा के दौरान रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बना यह विश्वविद्यालय देश का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो रक्षा क्षेत्र में शिक्षा प्रदान के साथ प्रशिक्षण देने में भी श्रेष्ठतम है। यह विश्वविद्यालय राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण संस्थान बन गया है। इसका विस्तार भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये हमारे लिए विशेष आनंद की बात है कि आरआरयू ने इसी वर्ष
अंतरीय परिसर अरुणाचल प्रदेश में खोला है और जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी इस यूनिवर्सिटी का केंद्र खुलने जा रहा है। इन दोनों परिसर के शुरू होने से पूर्वोत्तर भारत में रक्षा तथा पुलिसिंग जैसे विषयों पर अध्ययन बहुत ही आसान होगा। रक्षा का मतलब सिर्फ वर्दी, लाठी, बंदूक या सरहद पर हो रही सुरक्षा नहीं है। इसके साथ साथ आपत्ति में समाज की रक्षा करना भी रक्षा शक्ति का दायित्व है। आज यहां से डिग्री प्राप्त कर रहे सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि समाज में अधिक से अधिक युवाओं और महिला बहनों बेटियों को जागरूक करें। उन्हें देश की आंतरिक सुरक्षा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और भारत माता की रक्षा के लिए अपना योगदान देने प्रेरित करें। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सभी छात्रों, कुलपति एवं कर्मी प्रशिक्षकों को उज्जवल भविष्य को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। Thank you, Honorable Chief Minister, sir. It is a distinct pleasure of Rashtriya Raksha University to have Honorable Defence Minister of India as chief guest for the second convocation. ऐसे महान प्रेरणास्पद व्यक्तित्व की राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में उपस्थिति अत्यंत शुभ, आशा, विश्वास और उल्लास का विषय है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रद्धेय आदरणीय श्री राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री को आग्रह करूंगा कि वे अपने दीक्षांत भाषण के द्वारा उपस्थित युवा समुदाय के माध्यम से देश की संपूर्ण युवा पीढ़ी को संदेश प्रदान करें। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विमल एन पटेल और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार श्री अजय राजगौर जी, विश्वविद्यालय की फैकल्टी, प्यारे बच्चों और उनके परिवार के सभी सदस्यों, जब विमल पटेल जी ने मुझे आमंत्रित किया कि आपको रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हम सब चाहते हैं कि आप उपस्थित हों, मैंने सहज रूप से अपनी सहमति दे दी। उसका कारण यह है कि मैं भी टीचर रहा हूं, मैं भी रिसर्चर रहा हूं, मैं भी एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूं। इसलिए जब कभी भी विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट्स के बीच अथवा टीचर्स के बीच जाकर इंटरेक्ट करने का अवसर मिलता है तो उस अवसर को जल्दी मैं छोड़ता नहीं हूं। इसलिए सहज रूप से हमने अपनी सहमति दे दी है। आज यह दीक्षांत समारोह है। शिक्षा आप लोगों ने इसी विश्वविद्यालय से ग्रहण की है और दीक्षांत का मतलब होता है कि जो अब तक विश्वविद्यालय में आपको संस्कार मिले हैं, अब उसका अब यह अंतिम क्षण है जब आपको डिग्री प्राप्त हो रही है। विश्वविद्यालय परिसर में दीक्षा का यह सिलसिला तो निरंतर आगे भी चलता रहेगा, लेकिन विश्वविद्यालय में दीक्षा का यह अंतिम कार्यक्रम होता है जब छात्रों को डिग्री प्राप्त होती है। इसीलिए इसको दीक्षांत समारोह बोलते हैं, शिक्षांत समारोह इसे नहीं बोलते हैं। मनुष्य के जीवन में दीक्षा का, संस्कारों का कितना महत्व होता है, मैं समझता हूं बहुत विस्तार में जाकर किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही सामान्य उदाहरण आप सबके सामने रखना चाहूंगा। राम और रावण दोनों के बारे में आप जानते हैं। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्यादा धनवान भी थे, बलवान भी थे और उस समय का सबसे बड़ा विद्वान यदि कोई माना जाता था तो रावण माने जाते थे। यानी रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से धनवान भी थे, बलवान भी थे और ज्ञानवान भी थे। लेकिन अपने देश में अथवा दूसरे देशों में भी चले जाइए जहां पर भारतवासी रहते हैं, वहां पूजा रावण की नहीं होती है, बल्कि आजीवन मर्यादाओं का पालन करने वाले
विवेक पूर्ण तरीके से काम करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा होती है। यही संस्कार का महत्व है। मेरे साथियों, यह वर्ष स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 25 वर्ष के जो उस समय व्यापार का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, यह लोथल बंदरगाह। और इससे पता चलता है कि हम कितने प्राचीन हैं, कितने समृद्ध हैं और हम कितने व्यवस्थित थे। हमें कहा जाता है कि यदि आप इतने प्राचीन हैं, इतने प्रॉस्परस थे, समृद्ध हैं, इतने सुरक्षित राष्ट्र थे, तो इतने लंबे समय तक आप गुलाम कैसे हो गए? वास्तविकता यह है कि हम विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं में से इतने सारे झंझावातों को झेलकर एकमेव जीवित सभ्यता हैं। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सारे झंझावातों को झेलने के बाद भी यदि एकमेव जीवित सभ्यता यदि कोई है तो हमारी सभ्यता है। अतः सत्य यह है कि विश्व के इतिहास के तमाम ध्वंस विध्वंस में हम ही एकमात्र ऐसे बचे रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब हमारा रक्षा कवच यह बहुत ही मजबूत हो। और मैं इकबाल की भी वह कविता की याद दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा था, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से,
बाकी अभी तलक है नामो निशां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यह इकबाल ने कहा है। यदि यह सब कुछ न रहा होता तो इकबाल को यह कहने की जरूरत क्या थी? शायद यह कल्पना, यह कंसेप्ट इकबाल के दिमाग में भी न आया होता। मेरे साथियों, गुलामी की जिस मानसिकता से हमें अपने को मुक्त करने की जरूरत है, उसके लिए हमें अपने रक्षा के इतिहास का वास्तविक तथ्य पता होना चाहिए। ग्रीक हमलावर सबसे पहले आए, अलेक्जेंडर यहां से वापस चला गया। यद्यपि भारत के इतिहास के जो स्रोतों में अलेक्जेंडर का कोई उल्लेख नहीं है, सारा उल्लेख ग्रीक रिसोर्सेज में मिलेगा। अतः उनके तथ्यों का एक पक्षीय माना जा सकता है, परंतु इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है कि उसे हताश होकर यहां से लौटना पड़ा था। फिर सेल्यूकस, मिनांडर और डिमिट्रियस जैसे ग्रीक आक्रमणकारियों की निर्णायक पराजय भी यदि कहीं पर हुई थी तो इसी धरती पर हुई थी, और शक आकर इसी धरती पर परास्त हुए थे। यह है भारत का इतिहास। मेरे साथियों, सम्राट विक्रमादित्य की याद दिलाना चाहता हूं। सम्राट विक्रमादित्य ने किस प्रकार शकों को परास्त किया, इसका स्पष्ट उल्लेख हमारे यहां मिलता है। हूण, जिन्होंने यूरोप तबाह कर दिया, वो इस धरती पर किस तरह स्कंदगुप्त से वह पराजित हुए, इस इतिहास को भी हम अच्छी तरह जानते हैं। मेरे साथियों, इतिहास साक्षी है। अरब आक्रमणकारियों को बप्पा रावल ने किस प्रकार से हराया। एक छोटा सा उदाहरण समझिए कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध जाता है और सोमनाथ तक आने में महमूद गजनवी को 1025 हो जाता है, यानी लगभग 300 वर्षों का समय लग जाता है केवल 300 किलोमीटर आगे बढ़ने में। महमूद गजनी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मार्ग से आता है, परंतु वहां का संघर्ष देखकर वह इतना घबरा गया, उसे उस रास्ते वापस जाने की वह हिम्मत नहीं कर पाया और फिर सिंध के रास्ते से वापस गया और वहां भी भारी नुकसान उठाता हुआ केवल मुट्ठी भर सैनिकों के साथ वह वापस पहुंच पाया था। यदि वह जीतता हुआ आया होता तो बहुत आसानी से जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वह वापस चला जाता, लेकिन यह करने की वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। वास्तविकता यह है कि हमारे शौर्य और संघर्ष को पराजय का आवरण बराबर हमारे गुलामी के काल में यह देने की कोशिश की गई है। अब उस आवरण को, गुलामी के आवरण को, गुलामी की मानसिकता को, मेरे नौजवान साथियों, अब अपने जेहन से हमको निकालना है। यही आज संकल्प लेने की हम सबको आवश्यकता है। हमें संपूर्ण भारत पर नजर डालें तो असम में अहोम राजा लचित बरफुकन ने किस प्रकार मुगलों को लगातार पराजित किया। सरायघाट की लड़ाई उसका प्रमाण है। तमिलनाडु के चोल राजाओं ने किस प्रकार मलेशिया और इंडोनेशिया तक अपना साम्राज्य स्थापित किया, इससे भी मैं समझता हूं कि जिन्होंने इतिहास का अध्ययन किया होगा उनको जानकारी होगी। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी का शौर्य कौन नहीं जानता, और पेशवा बाजीराव ने 40 की 40 लड़ाइयां जीती। राजस्थान में बप्पा रावल ने अरब आक्रमणकारियों को अफगानिस्तान से भी आगे तक खदेड़ने का काम किया। यह है हमारे भारत का इतिहास। मेरे नौजवान साथियों, पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने पूरा अफगानिस्तान जीता था। पाटलिपुत्र के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य तो क्षेत्रफल में यूरोप के बराबर और आबादी में उससे दुगुना था। मेरे साथियों, यह उदाहरण मैंने सिर्फ इसलिए बताए कि गुलामी की इस मानसिकता से कि हम केवल पराजित ही हुए हैं, हमें मुक्त होने की जरूरत है। आत्मरक्षा का इतना गौरवशाली इतिहास किसी राष्ट्र के पास नहीं होगा जितना गौरवशाली इतिहास हमारे भारत के पास है। इतनी शक्ति और इतनी समृद्धि के बावजूद हमने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी भी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र रहा है। मेरे साथियों, मानव सभ्यता के इतिहास में सिक्योरिटी का कंसेप्ट प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ है। शुरुआती दौर में जब आदि मानव हुआ करते थे, तब उन्हें दूसरे आदि मानव
और जंगली जानवरों से सुरक्षा की जरूरत पड़ती थी, तब मानव जीवन इतना आसान और सुरक्षित नहीं हुआ करता था। आप सभी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप सभी मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, जो हमारे बच्चे पढ़े होंगे, जिन लोगों ने, टीचर्स जानते होंगे, हमारी मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के प्रमुख प्रणेताओं में से एक थॉमस हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर के सिद्धांत से अच्छी तरह परिचित होंगे। इसमें वह प्रतिपादित करते हैं कि बिना स्टेट के या कहीं बिना शासन प्रशासन के मानव जीवन एक आदर्श जीवन नहीं हो सकता है। यहां स्टेट से उनका तात्पर्य सिक्योरिटी के गारंटर से है, और जहां सुरक्षा नहीं है, जाहिर है वहां कला, साहित्य और संस्कृत की बात यह कहां की जा सकती है। मानव इन सबसे रहित होने के लिए पूरी तरफ से अभिशप्त हो जाता है। मेरे साथियों, जहां संस्कृति नहीं है, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, वहां जीवन की भी कोई कीमत नहीं है। थॉमस हॉब्स के अनुसार यह मानव की ऐसी स्थिति है जहां नो आर्ट्स, नो लेटर्स, नो सोसाइटी, एंड विच इज वर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूअल फियर एंड डेंजर ऑफ वायलेंट डेथ एंड द लाइफ ऑफ मैन, सॉलिडरिटी, पुअर, नेस्टी एंड ब्रूटिस एंड शॉर्ट। ऐसे में एक आदर्श जीवन वाले समाज के लिए स्टेट का एग्जिस्टेंस अनिवार्य हो जाता है। कालांतर में स्टेट के उदय के बाद सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फॉर्मल रूप से स्टेट के पास आ जाती है। स्टेट के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य गिनाए गए हैं, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी उनमें पहली है। मेरे साथियों, सुरक्षा का अर्थ है मानव की स्वतंत्रता की रक्षा, सुरक्षा का अर्थ है मानव के अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा का अर्थ है मानव की गरिमा की रक्षा। यदि कहा जाए कि सिक्योरिटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स एंड इकोनॉमिक वेलबींग, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा, यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। इसलिए वेद आदि प्राचीन ग्रंथों में भी इंद्र आदि देवताओं से सुरक्षा और अभय की भी हम लोग कामना करते हैं, और उन ग्रंथों में भी यही कामना की गई है। साथियों, बदलते वक्त और समाज के साथ, जैसा मैंने अभी कहा, सिक्योरिटी के डायमेंशंस, और मैं बच्चों से कहूंगा, सिक्योरिटी के डायमेंशंस में बहुत बदलाव आ गया है। क्योंकि इस देश का गृह मंत्री रहते हुए मैंने बहुत नजदीक से देखा है। अब तक सिक्योरिटी आमतौर पर दो पहलू, सिक्योरिटी को आमतौर पर दो पहलू से हम देखते थे। पहली इंटरनल सिक्योरिटी और दूसरी एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी डिफेंस। पर पिछले 2 डिकेड से देखा जा रहा है साथियों कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बीच जो एक फासला था वह बड़ा कम होता जा रहा है। जो एक स्पष्ट रेखा, क्लियर लाइन पहले थी, वह अब धुंधली पड़ती जा रही है। सिक्योरिटी थ्रेट के ऐसे नए नए डायमेंशन सामने आ रहे हैं कि उन्हें कैटेगराइज करना अब दिनों दिन बहुत ही कठिन होता जा रहा है, बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। उदाहरण के लिए टेररिज्म को ही लें। किसी खास उद्देश्य और मानसिकता के तहत समाज में भय उत्पन्न करने के लिए जब हिंसा फैलाई जाती है तो उसे टेररिज्म कहा जाता है। सामान्य तौर पर यह इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है, पर कई बार मालूम होता है कि ऐसे संगठनों की ट्रेनिंग, फंडिंग और आर्म्स का सपोर्ट यह बाहर देशों से हो रहा है। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं, जिन्हें एक्सटर्नल सिक्योरिटी की श्रेणी में रखा जाता है। इसी तरह इंसर्जेंसी अथवा एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद या चरमपंथ भी हमारे सामने प्रकट होते रहते हैं। मेरे साथियों, टेक्निकली इनकी डिफिनेशन में यदि आप जाएंगे तो इनके बीच आपको अंतर मिलेगा, पर कब और कहां यह आपस में ओवरलैप कर जाएं और कहां इनके उद्देश्य एक हो जाते हैं, इसका पता लगाना भी यह बहुत कठिन काम हो जाता है। आप उलझन में आ जाते हैं कि यह इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आएगा या यह एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंतर्गत आएगा। और अब तो ऐसे ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे सामने आ रहे हैं जहां सेनाएं खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, पुलिस देखती की देखती रह जाती है, पर बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं। मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा साइबर वार और इंफॉर्मेशन वार। साइबर वार और इंफॉर्मेशन वार इसी तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। यूएस की नासा जैसी इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी की सुरक्षा में भी
सेंध लग जाती है, उससे भी आप परिचित होंगे। हमारे देश में भी हम देखेंगे तो इस संदर्भ में हम कई चौंकाने वाले आंकड़े हमको प्राप्त होंगे। इसी तरह इंफॉर्मेशन वारफेयर है। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कितनी फेक न्यूज और हेट कंटेंट समाज में लाए जाने की संभावना होती है, जिनका कोई हद हिसाब नहीं है। बाहर से देखने पर दिखाई देता है कि कहीं कोई सेमिनार हो रहा है, कहीं कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहीं कोई सभा आयोजित की गई है जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार हो रहा है, जबकि सच्चाई बिल्कुल यह नहीं होती है। पर अंदर अंदर भ्रामक और रॉन्ग फैक्ट्स के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें फैलाई जाने की संभावना होती है जो किसी भी समाज को विद्वेष, घृणा और हिंसा से भर दें। मेरे साथियों, असामाजिक तत्व इतने तेज और एडवांस हो गए हैं कि कई बार पुलिस एजेंसीज भी उनसे गच्चा खा जाती हैं, उनसे धोखा खा जाती हैं, और कई बार उन्हें जो सामने दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो उन्हें दिखाई नहीं देता। पर नए नए सिक्योरिटी चैलेंजेस आज हमारे सामने इसी तरह से आ रहे हैं, जिनसे हमें आज सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे उनके खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए। टेररिज्म, साइबर वारफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर की तरह ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग एब्यूज आदि जैसी भी समस्याएं हैं जो देखने में तो अलग अलग हैं, पर अंदर से वह सभी एक दूसरे से किसी न किसी हद तक वह जुड़ी हुई हैं। इसलिए मेरे साथियों, इनसे निपटने के लिए स्टेट की सभी एजेंसीज को इंटीग्रेटेड होकर काम करने की जरूरत है। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी जमीनी सीमाओं, तटीय सीमाओं और हवाई क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ साथ स्पेस, डेटा, साइबर, इंफॉर्मेशन, एनर्जी, खाद्य, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और पर्यावरण आज की सुरक्षा का सम्मिलित रूप है। इस हकीकत को हमको समझना चाहिए, और किसी भी सॉवरेन नेशन का इनकी मजबूती सुनिश्चित करना मैं समझता हूं कि यह बेहद आवश्यक है। और मेरे साथियों, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कंपोनेंट देखने में भले ही अलग अलग दिखाई देते हों, पर सभी आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए कंप्रिहेंसिव वे में इन सब की मजबूती पर काम करना यह हम सब के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। और हमने इस बात को गहराई से समझा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं पिछले 7-8 सालों में हमने सुरक्षा की मजबूती की दिशा में अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़े ही प्रभावी और मजबूती के साथ हमने कदम आगे बढ़ाए हैं। साथियों, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये कुछ प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डायमेंशंस थे जिसका मैंने आपके सामने अभी उल्लेख किया है। ये सभी कुछ बाहरी उपाय हैं जिनसे हम समाज में अपराधों की रोकथाम करने का प्रयास करते हैं, पर इन सबसे महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूं, हमें इनके रूट काज पर विचार करना चाहिए और वहां से समस्याओं के खात्मे का भी हमको प्रयास करना चाहिए। यहां रूट से मेरा मतलब है हमारी अंतरात्मा। मैं नौजवान बच्चों से कहना चाहूंगा, हमारे रूट से यहां मेरा मतलब है कि हमारी अंतरात्मा, हमारे विचार और हमारा परिवेश। हमें इन पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो हमें हमारे समाज को नैतिकता और आध्यात्मिकता की ओर ले जाने की जरूरत है। और मैं कह सकता हूं, इस देश का विकास करने के साथ साथ भारत के समाज को नैतिकता और आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने के लिए भी हमारी सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं, और हमारी प्रधानमंत्री जी का विशेष इस पर आग्रह रहता है। अब आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि जब हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से ज्ञान ले रहे हैं तो हमें नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में अपने बच्चों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म, दिस इज द एलिवेशन ऑफ मन। मन का बड़ा होना, मन का उन्मन होना, मन का एलिवेटेड होना, यही अध्यात्म है।
यदि आप लोगों ने हाई स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो एक फार्मूले के माध्यम से इसे मैं आपके सामने क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मनुष्य का मन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसे सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, परमानंद की अनुभूति वैसे वैसे होती चली जाती है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपका मन एक सर्किल है, तो मेरा यह कहना है कि इस मन यदि सर्किल है तो इस सर्किल का सर्कुम्फरेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद और मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद अपने आप बढ़ता चला जाएगा और आप एक नई ऊंचाइयों को हासिल कर। इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो इस प्रकार से कह सकते हैं, सर्कुम्फरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, सर्कुम्फरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद, सर्कुम्फरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद, आत्मा का परमात्मा से। और मैं कहना चाहूंगा बच्चों कि यहां से उच्च शिक्षा पाकर यहां से पास आउट होकर जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, देश और विदेश में भी अच्छे अच्छे पदों पर आपको काम करने का मौका मिले, परंतु यह मौका यदि अच्छे अच्छे पदों पर काम करने का मिलता है तो आप क्या करेंगे यह आपकी बुद्धि पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़े बड़े पदों पर काम करने का मौका मिल जाए तो यह आपकी बुद्धि पर नहीं, आपके मन पर निर्भर करता है कि आप क्या काम करेंगे। बुद्धि तो सिर्फ यह बताएगी कि आप काम कैसे करेंगे, कितना अच्छा और कितनी सफाई से करेंगे और कौन सा काम करेंगे, यह तो आपके मन की प्रवृत्ति ही आपको बताएगी। और आपने दुनिया में यह भी उदाहरण देखा है कि विश्व के सबसे विकसित देश अमेरिका में सबसे जटिल कही जाने वाली पायलट की जो ट्रेनिंग है प्राप्त करके भी कई ऐसे युवक रहे हैं जिन्होंने हवाई जहाज ले जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया है और 9/11 की दुखद घटना को अंजाम वह दे देते हैं। भारत में भी एक नहीं अनेक ऐसे आतंकवादी घटनाओं में लिप्त युवक रहे हैं जो कि अशिक्षित नहीं रहे हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री है, डॉक्टरेट की डिग्री है, ऐसे लोग भी उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो लंबा समय लगेगा। आप लोगों ने थॉमस फ्रीडमैन की एक बुक पढ़ी होगी, द वर्ल्ड इज फ्लैट, उनमें इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा यह करके कुछ उन्होंने लिखा है। अब उस डिटेल में जाऊंगा तो लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग अपने इंटरनेट पर जाइएगा और देख लीजिएगा क्या लिखा है। मेरे साथियों, आपको यह ध्यान रखना है कि खूब पढ़ लिख लेने के बाद भी, फिर से मैं बात दोहराना चाहता हूं, आपको यह ध्यान रखना है कि खूब पढ़ लिख लेने के बावजूद अमेरिका में ट्रेंड पायलट होकर भी कोई 9/11 करने वाला खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा बन सकता है, डॉक्टर होकर भी कोई अफजल गुरु बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर भी कोई याकूब मेनन बन सकता है और बहुत धनी होकर भी कोई ओसामा बिन लादेन बन सकता है। इस सच्चाई को समझिए। इसलिए महत्व यह नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, महत्व इस बात का नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने प्रतिभावान हैं, कितने धनवान हैं, महत्व इसका है कि आपके मन का संस्कार कैसा है। इसीलिए विश्वविद्यालयों में शिक्षा पूरी करने के बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाता है। दीक्षा की, संस्कार की आपको याद दिलाई जाती है। इसलिए जब हम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होते हैं तो हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ दीक्षा पर भी, यानी संस्कार देने पर भी होना चाहिए, क्योंकि हम भविष्य में क्या करेंगे इसकी दिशा दीक्षा ही तय करेगी। साथियों, जीवन में ज्ञान का जितना महत्व है उतना ही हमारे संस्कारों का भी महत्व है। आपको कुछ जीवन मूल्यों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध होना चाहिए और आपके जीवन मूल्य ही आपके कैरेक्टर को बनाते हैं। फिर से दोहराना चाहता हूं, आपके जीवन मूल्य, आपकी लाइफ वैल्यूज ही आपके कैरेक्टर को बनाते हैं। और यह मैं इस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं तो मुझे एक घटना याद आती है। स्वामी विवेकानंद जो हमारे ग्लोबल यूथ आइकन है, ग्लोबल यूथ, हम किसी को मानते हैं तो स्वामी विवेकानंद को मानते हैं। एक बार विदेशों में
धर्म पर प्रवचन करने के लिए प्रायः वह जाया करते थे। एक बार उनका जो ढीला ढाला वस्त्र व गेरुआ, जो सामान्यतः हमारे यहां संत सन्यासी सब पहनते हैं, वह वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा था, सिर पर साफा था। उसको देखकर एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आप यहां इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के बीच लेक्चर देने के लिए आए हैं? लेकिन थोड़ा सा अपना ड्रेस आपने ठीक ठाक कर लिया होता, ठीक ठाक ड्रेस पहन लिया होता तो आप जेंटलमैन की तरह आप दिखाई देते। मुस्कुराकर उसकी बात को स्वामी विवेकानंद ने सुन लिया। लेकिन जब भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, मिस्टर, इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। यह स्वामी विवेकानंद। मेरे नौजवान साथियों, स्वामी विवेकानंद जी की यही बात आपको अपने जीवन में उतारनी है। आज इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर आपको कहना चाहूंगा, आपको ज्ञान, धन और संपदा के साथ साथ अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी उतना ही ध्यान देना है। मेरे साथियों, आप में से अधिकांश लोग इंटरनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। मालूम है मुझे, आंतरिक सुरक्षा के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार आंतरिक सुरक्षा के आधार बदल रहे हैं। एक समय में सिर्फ अपराधी गतिविधियों पर नियंत्रण करना केवल एक विषय था, पर फिर एक समय ऐसा आया जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी स्मगलिंग और डकैती जैसे अपराध ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। फिर यह समय ऐसा है जब आतंकवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए एक मुख्य विषय है। अब आने वाले समय में अर्थात आपकी पीढ़ी में ये आतंकवाद सिर्फ बम और बंदूक से नहीं, बल्कि व्यवस्था के हर आयाम में व्यापक स्तर पर यह सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। मेरे साथियों, आप सबने हाइब्रिड वार की मैं यहां चर्चा करना चाहता हूं। हाइब्रिड वार का नाम सुना है, आपको जरूर इस विश्वविद्यालय में हाइब्रिड वार के बारे में भी पढ़ाया गया ही होगा। हाइब्रिड वार में इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बीच की रेखा लगभग समाप्त हो जाती है। आज सिर्फ एक निश्चित समय में घोषित युद्ध का दौर नहीं है, बल्कि निरंतर छुपकर आंतरिक सुरक्षा पर आक्रमण यह निरंतर चल रहा है। चाहे वह हमारे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी सिस्टम पर साइबर अटैक का प्रयास हो, अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में कट्टरता और एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करने का प्रयास हो। उदाहरण के लिए मैं याद दिलाना चाहता हूं महाराष्ट्र की घटना का। भीमापुर कोरेगांव का उग्र आंदोलन पूरे देश में फैल गया। बाद में यह पता चला, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई कि 50% ट्वीट यदि कहीं से हुए थे, कहीं से ओरिजिनेट हुए थे, तो पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुए थे 50% ट्वीट। और मैं तो सुरक्षा एजेंसियों के संज्ञान में अब यह तथ्य भी आते जा रहे हैं कि कैसे विदेशों से नकली नामों के द्वारा जातिगत और सांप्रदायिक वैमनस्य और संघर्ष पैदा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और अतः आप आंतरिक सुरक्षा की चुनौती का नया क्या आयाम है, नया क्या स्वरूप है, इसे समझ सकते हैं। चुनौती सिर्फ इतनी ही नहीं है। किसी देश की सुरक्षा को नष्ट करने के लिए उस देश की अच्छी व्यवस्थाओं का कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है, मैं कुछ चीजों की चर्चा यहां पर करूंगा। देश की अच्छी व्यवस्थाओं को नष्ट करने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं। कहीं सोशल मीडिया स्वतंत्र है तो उस पर व्यवस्थित दुष्प्रचार कैसे किया जाए। सोशल मीडिया का स्वतंत्र होना यह कोई बुरी बात नहीं है, होनी चाहिए। मीडिया भी स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन यदि मीडिया स्वतंत्र है तो इसका दुरुपयोग कैसे होता है। कैसे मीडिया के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर खतरनाक और विभाजनकारी बातों को स्थापित करने और उसे प्रचारित करने की कोशिश की जाती है। यदि एनजीओज की स्वतंत्रता है तो कैसे एनजीओज का ऐसा प्रयोग किया जाए ताकि देश की पूरी सिस्टम ही ये पैरालाइज कर जाए। यदि जुडिशरी स्वतंत्र है तो कानूनी ढंग और कानूनी पेशों के द्वारा कैसे विकास के कार्यों को रोका जाए, यह कोशिश होती है, अथवा उन्हें धीमा किया जाए। यदि डायनेमिक डेमोक्रेसी है हमारे देश की तो कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर घुसपैठ करके देश की एकता और सुरक्षा दोनों पर बगैर दिखे हुए प्रहार किया जाए। ये बातें महज कल्पना नहीं है,
बल्कि कुछ देशों के सुरक्षा जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं, उनकी बातें हैं, और कुछ देशों की सुरक्षा संबंधी दस्तावेजों के अंदर यह सब सारी चीजें पूरी तरह से यह उल्लिखित हैं। मित्रों, अभी कुछ दिन पूर्व रूस ने विश्व की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मेटा को रूस यूक्रेन युद्ध में उसकी भूमिका के लिए अपने देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसे बैन कर दिया। मित्रों, इसमें क्या सही है और क्या गलत है, इसमें मैं नहीं आना चाहता, परंतु सिर्फ यहां यह बताना चाहता हूं कि सुरक्षा को लेकर लड़ाई के मायने कितने बदल गए हैं। अतः जब आप इस नई भूमिका में जा रहे हैं तो चैलेंजेज का, चुनौतियों का यह नया स्वरूप, यह समझना यह बहुत ही आवश्यक है। और मित्रों, मैं यहां पर यूनाइटेड नेशंस की भी आपको याद दिला देना चाहता हूं। हाईली एजुकेटेड लोग हैं आप लोग। मित्रों, शांतिपूर्ण अस्तित्व का वह स्वप्न जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय देखा गया था कि विभिन्न देशों के बीच यह रहेगा को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व, वह आज मुश्किल नजर आता है। और साथियों, इसका समाधान भी यदि कहीं है तो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में ही मिलता है इसका समाधान। उनके पास इसका समाधान नहीं है। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो न तो लंका का उन्होंने एनेक्सेशन किया और न तो अपना कोई प्रतिनिधि वहां नियुक्त करके सबजुगेशन करने का उसका प्रयास किया कि हम परोक्ष रूप से लंका पर हम अपनी हुकूमत चलाते रहें। यह भी राम ने प्रयास नहीं किया, बल्कि वहीं के एक कानूनन अधिकारी जो बनते थे विभीषण, उन्हीं के हाथे सत्ता हवाले कर दी और मानवीय मूल्यों के आधार पर शासन करने की प्रेरणा देकर, यानी विभीषण को भी मोटिवेट किया। यदि ये शासन चलाना है तो कैसे शासन चलाना है, ये मोटिवेट करके सत्ता उनके हवाले कर दी। राम ने वहां अपना प्रतिनिधि रहकर सत्ता नहीं चलाई। यह है भारत का चरित्र, यह है भारत के सांस्कृतिक मूल्य। और यह उदाहरण सिर्फ रामायण में नहीं, बल्कि आज तक भारत ने न तो किसी देश के ऊपर एनेक्सेशन किया है, यानी कब्जा किया है, और न तो किसी देश का सबजुगेशन किया है। भारत ने यदि विश्व में कुछ किया है तो केवल दुनिया के दूसरे देशों का मोटिवेशन किया है। न तो एनेक्सेशन किया है, न सबजुगेशन किया है हमने तो दुनिया के देशों का केवल मोटिवेशन किया है। यह है भारत का चरित्र, इसे हमें समझना चाहिए। मित्रों, देखिए हमारा मोटिवेशन कैसा है, और उस मोटिवेशन का ही अंतर है कि हम और हमारा एक पड़ोसी है पाकिस्तान, एक साथ 1947 में अलग अलग हुए थे, हम आगे बढ़े और वो इस मुकाम पर पहुंचे कि 11 साल पहले वहां विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन अल कायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन मारा गया। और हम वहां पहुंचे कि अटल जी की सरकार के समय में विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का अमेरिका के बाहर यदि कहीं पर कार्यालय खुला तो हमारा देश, यह भारत था जहां पर कि माइक्रोसॉफ्ट का यह कार्यालय यहां पर खुला। यह अंतर है। मोदी जी के कार्यकाल में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी, अच्छी तरह नाम जानते हैं सैमसंग, कि विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री दिल्ली के पास नोएडा में खुली। और रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में और सोलर एनर्जी को डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका केंद्र दिल्ली के पास गुरुग्राम, जिसे हम गुड़गांवा बोलते हैं, वहां स्थापित हुआ। यह अंतर है कि आपकी शक्ति किन मूल्यों से प्रेरित होती है और वह समाज को क्या देती है। मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इन दोनों का उदाहरण दिया। अतः मैं यहीं पर आपसे अपेक्षा करते हुए कि आप सभी कार्यकारी जीवन में जाएं, व्यवहारिक अपने जीवन में जाएंगे और नए भारत के नए स्वरूप को स्थापित करने में आप नई भूमिका निभाएं, यह मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं, यह मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं। हमारे युग द्रष्टा महापुरुषों ने जो स्वप्न देखा था उसे हम अमृत काल में साकार करें, यह संकल्प लेकर हम सबको जाने की जरूरत है। स्वप्न देखा था कभी
वो आज हर धड़कन में है। स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, उस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से, यह है भारत। साथियों, हमारा स्वप्न है कि हम भारत को महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने लाएं। हम भारत को शक्तिमान धनवान बनाने के साथ साथ ज्ञानवान भी बनाना चाहते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज भारत की बातें ध्यान से सुनी जाती हैं। बहनों भाइयों, अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाना चाहिए। मोदी जी का करिश्माई काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आप लोगों में से भी कुछ लोग या तो विदेश गए होंगे अथवा आपके परिवार के सदस्य वहां पर होंगे विदेशों में। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं सुनते थे। लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत है, यह भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भारत ने दुनिया को लीड किया है और इसका श्रेय भी मैं देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को। उन्हीं की पहल है और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में भी कामयाबी हासिल की है। मेरे साथियों, आतंकवाद को अपना टूल मानने वाले देशों को आज इस बात की अच्छी तरह जानकारी है कि भारत किसी देश के मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, दुनिया के उन देशों को जो आतंकवाद को अपना टूल मानते हैं, उनको इस बात की जानकारी है कि भारत एक ऐसा देश है जो बेवजह किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन जो भारत को कोई छेड़ता है तो उसे भारत छोड़ता नहीं। यह है भारत का चरित्र। भारत के बारे में यह धारणा सारी दुनिया में मेरे बच्चों बनी है और पिछले कुछ समय में हमने राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए अनेक क्षेत्रों में भी जो ऊंचाइयां हासिल की हैं। अब देश की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन एक सेंटेंस से कहकर यहां जाना चाहता हूं। आज के 10-12 वर्ष पहले हम दुनिया की टॉप 11-12 इकोनॉमीज में थे, लेकिन क्या करिश्मा हुआ है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कि आज कुछ ही महीनों पहले जो भारत दुनिया की टॉप 6 में था, देश की अर्थव्यवस्था टॉप 5 में आ गए। और मित्रों, मैं यहां पर आपको बतलाना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं बहनों भाइयों, वह दिन दूर नहीं है। यह डिकेड समाप्त होते होते आप अपना सीना ठोक कर कहोगे कि हमारा भारत अब दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो गया। वह भी दिन आने वाला है और मैं वह भी संकल्प आपको दिलाना चाहता हूं। यह चौंकाने वाली कोई घटना नहीं है। मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं सोच समझ कर मैं भी बोलता हूं। अमृतकाल समाप्त होगा 2047 को, 2045 को। यदि ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो 2047 यानी 2047 आते आते बहनों भाइयों, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनकर खड़ा हो जाए, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर खड़ा हो जाए। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, जिन विद्यार्थियों ने आज अपने टैलेंट के लिए, अपनी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर आज डिग्री हासिल की है, उनको तहे दिल में अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। और आयु में बड़ा होने के नाते बच्चों, मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि मैं टीचर भी रहा हूं। समस्त विश्वविद्यालय के टीचर्स को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। यदि आज हमारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय देश के विश्वविद्यालयों में एक अपनी साख, एक अपनी विश्वसनीयता बनाता जा रहा है, तो उसमें किसी का यदि मेजर कंट्रीब्यूशन है तो वाइस चांसलर का तो होता ही है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे टीचर्स का है। मैं लेना चाहता हूं पूरे फैकल्टी का, स्टाफ का। जहां मैं बच्चों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, वहीं पर इस विश्वविद्यालय के जितने भी सहकर्मी हैं, सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। I request everyone to give a standing
round of applause to the Honorable Defence Minister of India. Thank you, Honorable Defence Minister. May I now request the Vice Chancellor to conclude and declare the convocation closed. I declare the second convocation of the RRU closed. Thank you, sir. May we now request everyone to please rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Now, the convocation procession shall depart in reverse order. May we request the members of the audience to remain standing till the convocation procession leaves the arena.